एक मिनट। हाँ, जय सच्चिदानंद। અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા અમે કેવા ભાગ્યશાળી, પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી, પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાવ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આસ્વા શ્રુતિનો છે. ખુશી કન્ટિન્યુ કરો, એનો સાઉન્ડ ચાલ્યો જાય. ખુશી હા, આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ વાંધાને વચકાસૌ, અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રેયા, પપ્પાને કહેજે જરા મમ્મીને કે ચેક કરે. ઓકે, સાઉન્ડ ચાલ્યો જાય છે તારો. બરાબર, આ બધાને જેમ સાઉન્ડ નથી આવતો. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ હિરેન કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણે 9 કલમો ફાસ્ટ કરી લઈએ. હિતાક્ષીબા, નંબર 1. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્મા કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને બોલો સોરી. કિંચિત માત્ર પણ
અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. તોરલ જીના શાહ નંબર 3. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉદ્દેશ, સાધુ સાધ્વી આચાર્યનો અવરવા અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય ચિનાઈ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા ન બોલાય, ન બોલી જાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા બોલે તો મને મધુર ઉચ્ચ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. દેવ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ચિનાઈ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેનાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કર્યા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કે અનુજ દિવ્યા. હે દાદા હે ભગવાન, દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની શક્તિ પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. वेरी गुड. ओके. हिरेन दादा, हाँ जी. 3 मंत्र बुलाइए और उसके हाँ. बाद में हिंदी में बोलना प्रेयर आपकी. ठीक है. नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય, હરિહંતાણમ નમો હરિતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો નમો સિદ્ધાર્થ. નમો આયરિયાણમ નમો નમો વત્સાયાણમ નમો વસાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ નમો એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચનમુક્તારો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. જય શ્રી દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાન.
हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की समझने और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग करने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध मैं आत्मा शुद्ध हूँ। आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही कर, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व कर्मान्वी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। के दिव्या जिनाशा। दादा भगवान, तुमने आपके बच्चे हमने आपके बच्चे दिल के है चच्चे, दिल के सच्चे, दिल पे है कच्चे, फिर भी है काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष हिंदी। हे शिवराज, दादा भगवान आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे दादा भगवान आप परमानेंट हो, टेम्पररी है। हे दादा भगवान आप रियल रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ए चिनाय गुजराती। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके, आज किसने रिपोर्ट नहीं भेजा? ताक्षी बा, खुशी अहमदाबाद। नहीं, मैंने खुशी भेजा। अहमदाबाद नहीं, आपको मिला। तो तीर्थ अभी आपको लिखने का है, दक्ष आपका नहीं मिला। ओके ओके। क्या हुआ ताक्षी बा? आज पापा बाहर गए थे तो पापा ये मोबाइल लेके गए थे व्हाट्सएप वाला, इसलिए नहीं सेंड कर पाई। ओके ओके, वेरी गुड। ओके,
हमने थोड़ा स्टडी किया तो ये चेन्नई वाले को तो बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, और 15 आवर्स दे आर अकाउंटेड, और उन लोग को रिपोर्ट में 15, सो ओनली टाइम मिलता है आप लोग को ये सत्संग की बात हाँ समझ में नहीं। इंडिपेंडेंट आपका मैंने सोचा देखा तो आपको सारे सुबह उठ के ओनली टाइम मिलता है सत्संग के बाद में, और करेक्ट में हमारा एनालिसिस? ओके, वेरी गुड। तो अभी क्या करते हैं बाद में? अभी थोड़ी बातें करता है मम्मा पापा के साथ। ओके, वेरी गुड, ओ वेरी गुड। और श्रेया आज मैंने आपका 12 आवर्स का है, तो आपको कुछ कुछ थोड़ा टाइम मिलता होगा। तोरल आपको तो बहुत टाइम मिलता है, तो ये सब स्टडी प्रेयर, डेली प्रेयर, 9 कलमों, अभी वो टाइम करो। ओके, आप टीवी में क्या देखते हैं तोरल? तोरल में क्या एक घंटा टीवी में क्या देखते हैं आप? मैं तो वो क्राफ्ट वो सब का देख, नहीं सुना, क्या बोला? आर्ट एंड क्राफ्ट। Art and craft. आर्ट एंड क्राफ्ट, ओ वेरी गुड। आर्ट, तो आप बनाते हैं आर्ट और क्राफ्ट बनाते हैं आप कुछ? हाँ ट्राई करती हूँ, तो वो देख के बनाओ ना। देख के बनाती हूँ पर हाँ तो होता ठीक है, नहीं। तो मप्पा भाई को बोलने का और लेके आने का साधन और बनाने का। ये श्रेया तो बहुत करती थी, अभी टाइम नहीं है उसको, वो बड़ी हो गई अभी। राइट, छोटी श्रेया बड़ी श्रेया हो गई। श्रेया अपने मम्मी को है पास में, उसको खाना नहीं खिलाया आज? मम्मी है आपके पास? नहीं है इसलिए। ओके, खुशी खुशी ठक्कर आपको अभी आई डोंट नो कितना आपको टाइम मिलता है कि देखने का है। ओके, वेरी गुड। सो दिव्या दादा और I did some analysis, so this is what's coming out उन लोग का रिपोर्ट में। खुशी का मेरे को देखना पड़ेगा कितना आवर्स है बिजी का। ओके, एनीवे, तो आज कितना दिन से बाद अभी स्टडी का कैसा रहा स्टडी? पॉजिटिविटी एंड नियम पाड़ा क्या नहीं? ओके श्रेया। जय सचिदानंद, मेरा स्टडी में पॉजिटिव ये था कि मेरा पूरा एसएस का चैप्टर में जो क्वेश्चंस थे वो सब मेरे राइट थे। और ओके, खुशी ठक्कर। जय सच्चिदानंद। मेरे स्टडीज में पॉजिटिविटी ये है कि मैं स्कूल में जो लिखवाती है वो मेरा एक बार घर पे आके उसका रीडिंग या मैथ्स होता है तो उसके सम्स लर्न हो जाते हैं, वो मेरी पॉजिटिविटी है। ओके, वेरी गुड। नेगेटिविटी है कुछ देखा आज? नहीं, आज स्टडी में नेगेटिविटी नहीं थी। वेरी गुड। तोरल? स्टडी में मेरी जो वीक सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें आज सब राइट है। ओके, आपका मार्क्स कैसे आता है? हाँ आपको एग्जाम में मार्क्स कैसे आता है? What is the result? 80%, 70%, 90%, 100%? वो वहाँ तक तो हमारा मार्क्स का नहीं है, पर मेरा भी थोड़ा कम आया था। क्या क्या बोला दीपक दादा? They in that school they don't give marks. Like they give marks में उनका वो तो ग्रेड ही होता है ना, वो तो इंटरनल टेस्ट का है, मेन रिजल्ट में तो वो नहीं होता है ना। बिफोर मेरे थोड़े कम आए। अच्छा, पहले कम आए। अभी सत्संग में आते हैं तो बढ़ जाएगा। ओके, रेगुलर बनने का तो अभी बढ़ जाएगा सब।
अभी ये सब ब्राइट स्टूडेंट है इधर। मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी स्कूल में पॉजिटिव स्टडीज में पॉजिटिव ये है कि मैंने आज 4 सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिया और उसे रिवाइज किया, बट मैंने मैथ्स रिवाइज किया, वो मेरी नेगेटिव है। और मुझे स्कूल के प्रति अभाव आया आज 2-3 बार कि सभी स्कूल्स के लिए छुट्टियां आए, बट हमारे लिए स्कूल है, तो मुझे थोड़ा अभाव आ गया स्कूल के प्रति। मिस इंडिपेंडेंट। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी स्टडीज में पॉजिटिव ये थी कि मैंने आज मेरी कंप्यूटर साइंस की नोट्स मैंने आज कंप्लीट कर ली थी, और नेगेटिव आज मैंने मैथ्स सम्स नहीं किए थे। आपको टाइम नहीं मिलता होगा ना? Is that right? नहीं, आज मिला था, स्कूल्स नहीं है, छुट्टी है अभी। आरस था? हाँ। तीर्थ, आप रिपोर्ट नहीं लिखते, स्टडी में क्या चल रहा है? स्टडी में तो कल से लिखूंगा। ओके, वेरी गुड। पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरी स्टडी में पॉजिटिविटी ये है कि मुझे मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सब नहीं समझ में आ रहे थे मुझे समझ में आ गए, और इस बार मैंने सारे नियम मेरे फॉलो हुए हैं और नेगेटिविटी नहीं है स्टडी में। ओके, समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम 100% मांगता है। ओके देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी में पॉजिटिविटी ये है कि मैं मतलब हमारे स्कूल में अभी जो सिलेबस चल रहा है ना, उससे मेरा सब चीज में एक चैप्टर मैंने आगे लिख के रखा है। मतलब सर ने कहा वो एक्स्ट्रा थिंग्स, स्पेलिंग्स और वो सब। तो अभी हमको 90% मांगता है। ओके, अदरवाइज खाना बंद कर देगा। आरुष। जय सच्चिदानंद। मेरी पॉजिटिव ये है कि मैं स्कूल में जो मैम लिखवाते हैं उनके साथ लिख देता हूँ। वो घर पे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं? नहीं लिखता, वो घर पे होमवर्क करता। वो नोट्स रिवाइज करने का है ना घर पे आके, और जो आपका किताब में से देख के वो मिस पॉइंट होता है तो ओके। हाँ। और कितना दिन से आप आया वापस? किधर बाहर गया था? नहीं। तो अच्छा नहीं लगता है? नहीं अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा हिरन का अच्छा नहीं लगता है, और ढोल बजने में अच्छा लगता है, दूसरा किस पे अच्छा नहीं लगता। दक्ष। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी आज स्टडी में ये पॉजिटिविटी थी कि मेरा इंग्लिश का वर्क कंप्लीट नहीं था, वो मैंने कंप्लीट करा था। और ओके, और आप अभी नियम बनाओ। ओके, स्टडी में आपको राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत करने का है। ओके, और नियम कुछ बनाओ। ओके दीपक दादा। अच्छा, ये खुशी ने ऐसा बताया कि उसने सब रिवाइज कर दिया था। तो जब आप रिवाइज कर देते हो अहमदाबाद, तो कैसा लगता है? अरे अनम्यूट करो। हाँ, मैं सब रिवाइज कर लेती हूँ तो। हाँ, लेकिन रिवाइज कर देते हो तब कैसा लगता है? रिवाइज करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी रिवाइज नहीं करना, एग्जाम टाइम पे करते हैं, पर मैं कर देती हूँ फिर। ऐसा है, इस तरह से अगर आप रेगुलरली डे टू डे बेसिस पर रिवाइज करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्ट हो जाता है। तो फिर एक बार समझ लिया ना, फिर वो अपने आप याद रहता है। जब पूछेंगे तो अपने आप बोल पाएंगे। लेकिन ये लोग जो रह जाता है, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों? आपको टाइम नहीं मिलता है। इस रिया का रह गया,
दीपक दादा मैंने रिवाइज किया था। अच्छा, लेकिन वो तो पूरा किया था टोटल? नहीं, पूरा नहीं। वही तो है ना, इसलिए टोटल फुल्ली रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग और परफेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये है। और अभी तो हॉलीडे, सबको हॉलीडे है ना? नहीं। नहीं। किसको नहीं है? अच्छा, ओके। जिनको आरुष को हॉलीडे नहीं है कि है? नहीं है। अच्छा, ओके। जिसको हॉलीडे है वो कुछ सोचो, खेलने के लिए ना नहीं कहा है, लेकिन ये थोड़ा पार्ट हमारा जो रिवीजन का है वो होता रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हॉलीडे के बाद फिर से बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हॉलीडे के बाद, हॉलीडे में ट्यूशन होता है? हाँ। नहीं, ट्यूशन होता है? ट्यूशन नहीं होता है ट्यूशन। हॉलीडे में भी ट्यूशन होता है ना? तो फिर ठीक है, लेकिन जो ट्यूशन के बाद तो टाइम तो बहुत मिलता है ना, तो ये प्लान करो। अकेला खेलने का वो राइट चीज नहीं है। खेलने का रखो, मैक्सिमम रखो, लेकिन थोड़ा टाइम ये रिवीजन का रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, हिरन काका आपने सब सुना ये बच्चों लोग का स्टडी। तो आप उससे बातें करो। ये जो गुड इम्प्रूवमेंट होता है स्टडी में। अभी नया रिपोर्ट बनाया है, उसमें ये नया स्टाइल बनाया है। स्कूल में पढ़ के घर पे आके वो नोट्स में रिवाइज करने का, और लास्ट मिनट एग्जाम में टेंशन नहीं होगा। कि ये जो अपने को अपने सब बच्चों को जो सब ये सब समझाया है, और उसमें अपनों ने कई पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, लेकिन ये सब सुनते सुनते मेरे को ये विचार आया, हमारे पढ़ने के टाइम पे भी हमें ये सब हुआ है कि नेगेटिविटी होती है। तो मेन क्या है कि नेगेटिविटी कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो जानने का है। कई बार अपने को ऐसा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो वो नेगेटिविटी हो गई। अपने को कई बार कोई टीचर अच्छे नहीं लगते हैं तो वो नेगेटिविटी हो गई। कई बार अपने पढ़ाई करते हैं तो वो टाइम पे अपने को खेलने का याद आता है तो ये नेगेटिविटी हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नेगेटिविटी वाली है। तो इसको देखने का है कि भाई ये नेगेटिविटी क्यों होती है। अगर ये नेगेटिविटी ये रही तो मेरे को कितना नुकसान होगा। अपने को अभी क्या लगता है, सब अच्छा चलता है, मैं पास हो जाता हूँ तो सब चलेगा। तो कि ये जो जितनी भी आपके पास अभी नेगेटिविटी है, अभी आप जैसे कोई पौधा है तो पौधे को जितना भी उसको अच्छा पानी मिलेगा, खातर मिलेगा, तो वो पौधा आगे जाके अच्छा उसका परिणाम देगा, कि फल देगा। तो अपने अभी जो पढ़ाई करते हैं तो अपने को जिस तरह से भी पढ़ाई में जो जो शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा से सिर्फ अपने को ये नंबर लाने का है कि मार्क्स लाने का है, इस तरह से नहीं पढ़ाई करने का है। मेरे को ये पूरा ये जो भी सब्जेक्ट आया है मेरे सामने वो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरा क्लियर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, उसके हिसाब से क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी कौन सी काम कर रही है कि सब जो सब्जेक्ट है उसमें काम कर रही है, एक सब्जेक्ट में काम कर रही है। मेरा खेलने में ज्यादा ध्यान है, मेरा टीवी में ज्यादा ध्यान है, मेरा मोबाइल में ज्यादा ध्यान है, मेरे को बाहर खाने के लिए जाने का उसमें ध्यान है, घूमने में जाने का है उसमें ध्यान है। कहाँ पे है मैं कहाँ पे हूँ। जो जब भी पढ़ाई करने की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ध्यान कहीं बाहर जाता है
तो कैसे पता चलेगा? जैसे भी आप पढ़ने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका जो भी नेगेटिव भाग है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो उसको तुरंत ऐसा होगा कि यार ये क्यों आ गया। किसी को मन करता है कि मेरे को बाहर घूमने जाने का है, कोई पिक्चर देखने जाने का है, तो जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठेगा ना तो उसको वो याद आएगा। किसी को पढ़ाई करने शुरू करेगा तो उसको तुरंत खेलने का याद आएगा। तो जैसे ही आप पढ़ाई करने का शुरू करते हो तो आपको कुछ दूसरी कोई चीज याद आती है कि नहीं आती है, वो ध्यान रखने का है कि मेरे को पढ़ाई के समय कौन सी चीज दूसरी याद आती है, अपने चित्त में आती है और मेरे को वो बेध्यान कर देती है। तो वो अपनी नेगेटिविटी हुई। तो जैसे अपनी नेगेटिविटी का ध्यान रखा और वो उसका समाधान लिया, अपने पास तो ये जो दीपक दादा है, रजनीकांत दादा है, कितना करते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी जैसे ही बताएंगे, आप तो पुत्र है सब, नेगेटिविटी बताएंगे तो तुरंत आपको आपका उसमें से समाधान मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा करने का है कि अपनी नेगेटिविटी क्या है वो सबसे पहले जानना पड़ेगा और वो नेगेटिविटी को निकालने के लिए क्या करने का है वो जानेंगे। तो फिर आपकी जहां पे भी प्रगति रुक गई है वो रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। ऐसा मुझे लगता है। रजनीकांत दादा बराबर बात है। मैं बात किया बहुत बच्चा लोग मालूम पड़ा। तो अभी वेरी क्विकली अभी तो ये कितना दिन से साल से हम बात करते हैं। नॉर्मली अभी उन लोग को अभाव नहीं होता है कोई सब्जेक्ट में, थोड़ा वीक होता है, अभाव नहीं होता है कि नहीं मांगता है। और सब वीक है, वो वीक स्टडी करते हैं वेरी क्विकली। टोटल आप भी एक भी सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लगता है ऐसा है? हाँ है, वो कल बात करेगा। वो कौन सा? गुजराती। हाँ, गुजराती। गुजराती। वो तो अपना मदर टंग है। और हिंदी क्यों हाँ, गुजराती हिंदी है। क्यों अच्छा नहीं लगता है गुजराती? I just don't. हाँ, वो कल मेरे को बताना। नहीं- ओके श्रेया? हम हिंदी। अभी मैंने बोला नहीं पसंद है उसकी बात है, वीक की बात नहीं है। तो सब सब्जेक्ट पसंद है। खुशी? सब्जेक्ट सब पसंद है। ताकसीबा? हाँ, मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन सिर्फ जब मैं सिविक्स करती हूँ तो तब उसमें आलस आती है। वो तो बहुत बड़े। वो तो आप महात्मा पढ़ किधर गए आपको? आरुष? सारे सब्जेक्ट पसंद तीर्थ? सारे सब्जेक्ट पसंद है। दक्ष? संस्कृत नहीं संस्कृत? पसंद है। ओके, वो क्या नहीं कल पसंद? संस्कृत। चिनाई? सारे सब्जेक्ट पसंद है, बट मैथ्स में अभी भी मैं थोड़ी वीक हूँ। लेकिन आप कितना प्रैक्टिस कितना कर पाते हैं दिन में, वीक में? दिन में मैं 1 आवर मैथ्स के लिए टाइम निकालती हूँ। she's improving ना? इंडिपेंडेंट? मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, बट तमिल और मैथ्स में वीक हूँ। See, इरन दादा, सो इतना उन लोग को ये थोड़ा निकाल दिया कि नहीं पसंद और वीकनेस। और एक टोरल और दक्ष नया है ना, तो उन लोग को भी अभी बातें करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे सब अभी वीक्स नॉट लाइकिंग का भी कम हो गया है। ओके हिरन काका? हाँ जी। तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है सब में। और देव आपको? मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन मैथ्स मतलब नहीं पसंद भी है, नहीं पसंद और वीक भी है। ओके सो ओके, हम दादा का फॉर्मा बताया का बोलने का, हमको पसंद है पसंद करके सबको ये इतना आ गया। तो कल बातें करेंगे। ओके, जो
जिसको नहीं पसंद है उसकी बात करेगा कल। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सभी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम पंच सुनेंगे।